Good morning to everybody. I hope all of you are healthy, safe, and enjoying the studies here that our lectures are going on. In the continuation of our lecture, today we will discuss about the very basic fundamental aspects of atom, right? So we will discuss a new topic which is called atom. Atom. What do you mean by atom? Atom क्या होता है? It is the smallest particle. It is the smallest particle. लिखो. It is the smallest particle which matter is made up of. Which matter is made up of. Which matter is made up? Atom. राइट जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अणु. इसको डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड वे बैक इन 1808 बाय जॉन डाल्टन. लिखो. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जॉन डाल्टन व्हेन ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक theory. When he presented his atomic theory, right? And this atomic theory laid down the foundation of modern chemistry. जो आज आप modern chemistry देख रहे हैं वो इसी डाल्टन की देन है, right? लिखो. एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मैटर इज मेड ऑफ, राइट? इट वॉज डिस्कवर्ड वे बैक इन 1808 बाय जॉन डाल्टन in his atomic theory, in which he discussed about the atom, and this atomic theory laid down the foundation of Dalton's atomic theory, right? अब atom is so small that you cannot see the atom from your naked eyes. And forget about microscope also. Even a normal microscope cannot see the atom. Atom is very small. Then what kind of microscope we take? इसको हम बोलते हैं scanning, tunneling. लिखो ये नाम लिखो. They might ask you this name. Scanning, tunneling, microscope. क्या बोलते हैं इसको हम? Scanning, tunneling, microscope. This microscope is used to see atom. देखो नाम. Scanning, tunneling, microscope. This microscope is used for seeing the atom. Atom cannot be seen by any normal microscope. Remember this. Okay? Done? Because the atomic radius कितना है इसका? ये भी लिख लो. The atomic radius of atom कितना है? I think 0.35 nanometers. लिखो. 0.35 है या 37 है? आई थिंक 37 लिखो दो. 0.37 नैनोमीटर्स. 0.37 नैनोमीटर्स. डन हो गया. ये याद रखनी है चीज़ें, बिकॉज सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार इसके ऊपर. ठीक है. अब सवाल आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल. एटम को तो समझ में आ गया. अब आता है मॉलिक्यूल क्या है. व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, लिखो, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टू और मोर atoms. लिखो. yes. Now as we have discussed what is atom, now our second topic is molecule. Okay, तो molecule क्या होता है? Molecule is made up of atoms
or you can say molecule is made up of group of 2 or more atoms. ये लिखा है हमने, molecule is made up of group of 2 or more atoms, right? अच्छा, and it is also, and they are chemically bonded with each other. They are chemically bonded with each other. They are chemically bonded with each other, right? And एक चीज और लिखो, molecules always exist in free state. Molecule exist in free state. लिखो, molecule exists in free state. लिखो, done. And it has the same property of which it is made. लिखो, and it contains the property of the substance. ये 3 पॉइंट तुम्हें मॉलिक्यूल के बारे में याद होने चाहिए. इट इज द क्रक्स. लिखो, they contain the same property of that substance. ठीक है, तो may I revise for you, right? What is molecule? Molecule is made up of group of 2 or more atoms. ठीक है, 2 से ज़्यादा एटम जब combined हो जाते हैं, they make a molecule, right? And how these atoms are combined together? They are combined together by, they are chemically combined together, chemically bonded together. They exist in free state. ये free state के अंदर होते हैं. It contains the property of the substance. जिसका मॉलिक्यूल होगा, जिस सब्सटेंस का ये मॉलिक्यूल है, वही प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की भी होगी जो सब्सटेंस की है. ये याद रखना, राइट? अब एक और वर्ड लिखो. क्या समझ में आ गया? एटम, मॉलिक्यूल, क्लियर? और यू वांट मी टू रिवाइज वंस मोर? What is atom? Smallest particle of which matter is made up is called atom. Who discovered atom? John Dalton, right? In his atomic theory in the year 1808. ठीक है? Then what we have discussed, this Dalton's atomic theory laid down the foundations of modern chemistry that you are seeing, that you are going to study, and all the chemical things that you are looking at. The foundation is Dalton's atomic theory. After that, which instrument is used? ये भी आ सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि which microscope is used to see the atom, because atom is very small. The atomic radius of atom is 0.37 nanometers. So you can just imagine how much small it is. That a normal, even an advanced microscope is not having the capability to see and detect atoms. Therefore, which kind of microscope is used for seeing atom? Scanning tunneling microscope. केड़ा माइक्रोस्कोप? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का होता है भैया? ग्रुप of 2 or more atoms. Group of 2 or more atoms. Okay, and these atoms are chemically bonded with each other. ठीक है, उसके बाद they exist in free state. ये free state में exist करते हैं. It contains the property of that substance. Okay, right? That's good. Okay, now we'll rub this. Okay. अब हम एक नया टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है एटॉमिसिटी. उठा लो, इसका नाम है एटॉमिसिटी. नाम सुना है यार? ये एटॉमिसिटी कभी सुना होगा नाम तुमने. एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स. लिखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन one molecule. Number of atoms present in one molecule. Number of atoms present in one molecule. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Number of atoms present in one molecule of an element.
ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे एटॉमिसिटी ऑफ H2 क्या होगी? 2 एटम्स हैं इसके अंदर, तो इट इज बिकम 2, राइट। नाइट्रोजन N2 इट बिकम्स 2, ठीक है। ये क्या है? इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी, ठीक है। ओजोन O3, तो इसकी क्या होगी? 3 हो गई यार, राइट और रॉन्ग। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? 2 एटम्स किसके? हाइड्रोजन के। 2 एटम किसके? नाइट्रोजन के। 3 एटम किसके? ऑक्सीजन के। यानी कि जो एटम्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है? सेम एटम्स है, तो उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक। इसको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक। लिखो, इसको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लिखो फटाफट, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिखो। जिसमें जो एटम्स हैं वो क्या है? सेम एटम्स हैं इसके अंदर। 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डन। अब आगे लिखते हैं। लेकिन अगर आप सोचो, अमोनिया की बात करो। अमोनिया नाम सुना होगा ना तुमने, NH3। अब इसमें क्या है? 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि N, राइट। अमोनिया में देखो 3 एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है सलीम? नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा था? दोनों एटम किसके थे? हाइड्रोजन के। यहाँ पे दोनों एटम किसके थे? नाइट्रोजन के। तीनों एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। और यहाँ पर क्या है? 3 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम नाइट्रोजन का है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं ऐसे को? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लिखो, इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डन। ओके, ये हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो ताकि तुम भूलो ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 में क्या है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो ये क्या बन गया? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? गाल समझ आ रही है बादशाह? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? केमिकल सिंबल्स। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। केमिकल सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स की होंगे शॉर्ट फॉर्म। अब यार मेरे को लिखनी है नाइट्रोजन, ये मैं नाइट्रोजन लिखूंगा, टाइम लगेगा, मैं सीधा N लिख दूंगा। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, तो मैं सीधा O लिख दूंगा। हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन, ये H है। बताओ सलीम कौन सा आसान है? ये आसान है यार, आज बंगाली हमारे साथ है यार। राइट और रॉन्ग? ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया नाइट्रोजन। सिंपल। इसको पूरे को लिखोगे तो टाइम लगेगा ना, तो हमने क्या किया? शॉर्ट फॉर्म्स निकाल दी। इन शॉर्ट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल सिंबल्स। सिंपल। जैसे अब तुम्हें क्या लिखना है? सोडियम लिखना है, तो सोडियम तुम ऐसे लिखोगे, पूरी स्पेलिंग लिखोगे। सोडियम का सिंबल पता होगा तो क्या लिख दोगे? Na। तो ये क्या है? केमिकल सिंबल्स है, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल फार्मूला का होता है, ये बता देते हैं तुम्हें। केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। जैसे ये शॉर्ट फॉर्म थी, केमिकल फार्मूला भी एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म। किस चीज की? इट डिनोट द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला से क्या पता चलता है? कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। क्या पता चलता है? कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला क्या है भाई सलीम? कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कहानी खत्म। राइट? सिंपल।
जैसे हमारे पास अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या है, ये अमोनिया है। अब मैं अमोनिया ऐसे लिखूंगा AMMONI, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, NH3। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा CO2, राइट। ठीक है, क्लियर, काम बन गया यार। मीथेन का फार्मूला क्या है, जैसे मीथेन कैसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। ये क्या है, केमिकल फार्मूले। तो यानी कि आपने क्या सीखा, आपने साहब 4-5 चीज़ें सीख ली। पहली चीज़ क्या सीखी, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के बाद आपने क्या सीखा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एक ही तरीके के एटम के बने होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन H2N2, राइट और रॉन्ग, ये क्या है सारे, होमो एटॉमिक। ओजोन। फिर आपने क्या सीखा, आपने सीखा हेट्रो एटॉमिक क्या होता है। हेट्रो एटॉमिक किसे कहते हैं, व्हेन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और more different kinds of atoms. So you have seen ammonia, you have seen the example of carbon dioxide. Different atoms are joined together. How they are joined together, they are chemically bonded together. And after this you have understand the concept of chemical symbols, you have understand the concept of chemical formulae. What is chemical formula? Chemical formula is showing you the chemical composition, is showing you chemical composition, right? Clear? Can we move ahead? Okay. अब इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दिया भैया। अब चलो, अब आगे देखो, तुमको क्या बताएंगे भैया, बताओ, लिखो। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, we will discuss about atomic mass and about the molecular mass. This is a very important term because these are the very basic concepts which the examiner expects you to know that here, right? And there is a high possibility that in your examination, whatever exam that you will be appearing in it, they might ask a question from this segment. That is, it becomes imperative on my part to discuss this with you. Okay? Right? Okay. So what is atomic mass? क्या है? What is atomic mass? It is relative mass of, लिखो, relative mass of atom, लिखो, relative mass of atom as compared to the mass of C12, कार्बन 12। ठीक है, सिंपल। यानी कि एटम के मास को, मान लो अगर एटम का मास लेटस से x है, उसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 12 के साथ कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एटम, रिलेटिव मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12। ठीक है, इसके क्या इंडिकेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इट इंडिकेट्स, इसको अंडरलाइन करो, इट इंडिकेट्स, लिखो, द नंबर ऑफ टाइम्स, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ टाइम्स एटम इज हैवियर with respect to carbon 12 atom, with respect to carbon 12 atom। ठीक है, इसको हम कार्बन 12 को हम ये भी बोल सकते हैं 1/12 ऑफ कार्बन यार। ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम,
ये इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। द एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। द रिलेटिव मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, it is telling you how much heavier an atom is. This is what it is reflecting, right? अब आता है मॉलिक्यूलर मास। सेम, यहाँ पे एटम था, अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल with respect to the mass of carbon 12। लिखो, what is molecular mass? Relative mass of molecule with respect to carbon 12। समझ आ रही है सलीम तो बात? ठीक है, ओके, डन। सेम थिंग, डन। मे आई रब दिस or you want me to explain it again? It's a very simple concept. What is molecular mass? Relative mass of molecule with respect to the mass of C12। ठीक है, same। What is atomic mass? Relative mass of atom as compared to the mass of C12। What it indicates? Both of them indicates the weight, number of times an atom or molecule is heavier with respect to C12। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पी ले क्या भैया? ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब आवत रहा, क्या आवत रहा भाई? नेक्स्ट बताओ सलीम, एटॉमिक मास यूनिट। आज क्लास में सलीम है हमारे साथ, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एटॉमिक मास यूनिट, राइट? लिखो एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट को हम लिखते हैं 1U। क्या लिखते हैं? 1U लिखते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये किसके बराबर है? 1/12। अब बिकॉज आई एम नॉट गुड इन हिंदी, तो अगर मैं गलती कर रहा हूं तो प्लीज फॉरगिव मी। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम विच इज इक्वल टू 1.66 into 10 to raise power how much? Can anybody tell me? Salim, do you have an idea how much it comes out to? Minus 24 grams. That is the value, right? अब फिर क्या होगा हमारे पास? इसको हम देखेंगे। अगर मैं से पूछोगे तुम लोग एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या हुआ, हमें पता है 32, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इट कम्स आउट टू बी 32U। ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग एन आइडिया। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? क्या होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 16U हो जाएगा, राइट? तो ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻24। ओके, ये हो गया। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अगर 32 है तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा? 32U। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया है। अब एक और नंबर आएगा जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जान पाना, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? दैट यू विल सी। बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ इन माई क्लास लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रेड साइंस आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। सलीम तुम्हें नींद आ रही है क्या? नाउ सलीम इज मूविंग आउट। एटॉमिक नंबर इज number of protons in atom. Number of protons in atom. Number of protons in atom is called atomic number. It is represented by Z. एंड तुम्हें पता होगा एटम में क्या होता है? प्रोटॉन्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी लिख लो, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के अंदर कितने हैं प्रोटॉन? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो गया, डन, ये हो गया। आगे लिखो। अब एक और कॉन्सेप्ट है मास नंबर। अब सवाल है मास नंबर क्या होता है? मास नंबर लिखो। द टोटल नंबर ऑफ, लिखो मास नंबर किससे डिनोट करते हैं? ए से। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्या होता है मास नंबर? द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जैसे अगर कार्बन के में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो कार्बन का मास नंबर क्या हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, डन। तो आपने क्या सीखा? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, इसके निकल रहा है ढक्कन बार बार। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z. Number of protons in an atom is called atomic number. Because protons are equal to number of electrons, so we can also say that atomic number is equal to number of electrons also, represented by Z. Mass number आपने क्या सीखा? The total number of protons plus neutrons in atom is called mass number, represented by A. एक और चीज सीखो। अगर तुमसे मैं क्या इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिख सकता हूँ ना? लिखो, ये भी लिख सकता हूँ मैं। मास नंबर इज इक्वल टू, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा फार्मूला। लिखो, A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, डन। मजा आवत रहा? बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग यार? डन। चलो अब आगे की सैर करते हैं। अब तुम्हें आगे ले जाते हैं भैया। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? अब ये समझेंगे। देखो, एटम इज बेसिकली मेड अप ऑफ, एटम इज बेसिकली made up of 3 smallest particles. कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। लिखो,
atom is basically made up of three smallest particles, proton, electron and neutron. ठीक है, तुम्हें पता है एटम किसने डिस्कवर करा था? Do you know that ना? डाल्टन, जॉन डाल्टन, राइट? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? डू यू नो दैट? इलेक्ट्रॉन किसने किया? डू यू नो दैट? यू डोंट नो, तो राइट इट डाउन. इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. Thomson. Proton was discovered by E. Goldstein. Proton was discovered by E. Goldstein. And neutron was discovered by James Chadwick. By James Chadwick. अब जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है. ये भी याद रखना. दिस यू आल्सो रिमेंबर, राइट? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज. तो इसमें कौन सा चार्ज होता है? +1, ये -1, और ये न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा 0. न्यूट्रॉन इज 0. लिखो फटाफट, लिखो इसको. राइट इट डाउन. +1, -1, 0. ठीक है, हो गया. अब मॉडल को समझने के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता कैसे, बहुत मॉडल्स आए, तो मैं तुमको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. फिर वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो जाएगा, बट तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. दैट आई विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो आई विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. ये समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लें ताकि तुम भूलो ना. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम को तुम्हें बताया मैंने, एटम किसने डिस्कवर किया था? जॉन डाल्टन ने, व्हेन ही गेव हिज एटॉमिक थ्योरी वे बैक इन 1808. And that Dalton atomic theory laid down the foundations for the modern chemistry. Atom is basically made up of three smallest particles. कौन से particles हैं? Proton, electron and neutron. Electron क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, -1 चार्ज है इस पे. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, +1, और न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रल चार्ज है. न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने. इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, और प्रोटॉन E. गोल्डस्टाइन. ठीक है, याद रहेगा. बस हमने आज इतना डिस्कशन किया है. अब आगे चलते हैं. ठीक है, डन. ये हो गया. अब आगे लिखो. अब देखो, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो एटम होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इस पे सबसे पहले थॉमसन हम बोलते हैं इसको. J.J. थॉमसन ने अपना मॉडल ऑफ एटम बताया. क्या बताया? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. सबसे पहले इन्होंने बताया कि एटम कैसा हो सकता है. इन्होंने कहा एटम ऐसा होगा, ऐसा एक सर्कल होता है, इसके अंदर जो है ये एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, और इसी के बीच के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं. ऐसा मॉडल बनाया है इसने. It is a sphere. Atom is a sphere of positive charge with negative charge embedded in between. तो ये किसने कहा? थॉमसन ने कहा. थॉमसन के बाद एक इंपॉर्टेंट मॉडल आया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. राइट? रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है. एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है,
और इसने क्या किया, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। ये किसने कहा? और ये न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है। और जो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ को उसने क्या बोला? ऑर्बिट। क्या बोला? ऑर्बिट। ये थोड़ा मोटा मोटा याद रखना है बस तुम्हें। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों की जो फोर्सेस हैं ये इसको कंबाइंड रखती हैं। दिस फोर्सेस आर कीपिंग them combined together, keeping them combined together। ये किसकी थ्योरी थी? रदरफोर्ड की। ये मॉडल किसने बनाया? रदरफोर्ड ने बनाया। और तीसरी बात रदरफोर्ड ने क्या बोली? ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों क्या हैं? इक्वल है, राइट। और बाकी का जो सारा पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? इस मॉडल को हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो मॉडल थे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, दे हैव नॉट गिवन द राइट पिक्चर। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ लेकुनास इन देयर थ्योरी। तो फिर एक कौन सा मॉडल है जिसके ऊपर आज की केमिस्ट्री बेस्ड है, जिस पे सारी स्टडीज बेस्ड है? डू यू नो? उसको हम बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। क्या बोलते हैं? बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो वो किसने दी? बोर्स ने। बोर्स, नील बोर था इनका नाम, हिज फुल नेम वाज नील बोर। बोर मॉडल ऑफ एटम। तो अभी हमने पहला कौन सा पढ़ा? थॉमसन मॉडल। सेकंड कौन सा पढ़ा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब थर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं? बोर मॉडल ऑफ एटम। अब बोर मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था, साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ नील्स बोर। उसी के नाम पर ये बना गया बोर मॉडल ऑफ एटम। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज मॉडर्न, लिखो, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इट इज आल्सो नोन एज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इट इज आल्सो नोन एज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम को। तो उसने क्या बोला? नंबर 1, इसने कहा एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। पहली चीज इसने बोली, लिखो, इसने पहली चीज क्या बोली? एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। और इसने क्या बोला? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है दैट इज जीरो चार्ज, इसमें कोई चार्ज, इट इज न्यूट्रल। ये किसने बोला है? नील्स बोहर ने। थर्ड पोस्टुलेट लिखो उसका, थर्ड पॉइंट लिखो इसका, राइट, राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। फिर इसने क्या बोला? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूक्लियस में। कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियस में। ये थर्ड पॉइंट था इसका। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन न्यूक्लियस। ये लिखो। फिर इसने क्या बोला? फोर्थ पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड देम इन सर्कुलर पाथ। इसको इसने क्या बोला? एनर्जी लेवल्स। ही कॉल देम एज एनर्जी लेवल्स। और इसका नाम क्या दिया? K, L, M, N, ऐसे करके लिखो।
ये लिखो उसका पोस्टुलेट, कौन सा नंबर हो गया, 4th हो गया, सॉरी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ही कॉल्ड दिस सर्कुलर पाथ एज एनर्जी लेवल्स कॉल्ड KLMN, ऐसे करके एंड सो ऑन, KLMNO एंड P, ये बोला इसने, ठीक है, डन। तो और एक और याद रखो, ठीक है, ये इसके 4 मेन पोस्टुलेट्स थे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने बताया कि जो एक एनर्जी लेवल में हो सकते हैं वो 2 हैं, है ना। जैसे K के अंदर, K जो है सबसे इनर मोस्ट होता है, आई रब दिस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, K इनर मोस्ट शेल है जो सबसे क्लोज है, K इज द इनर मोस्ट शेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये इनर मोस्ट है, ठीक है। L में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लिख लो ऐसे, थोड़ा आइडिया रखो, L में कितने हो सकते हैं, 8, M में कितने हो सकते हैं, 18, ये भी लिख लो, चलो, M में कितने हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, N में कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो ये, 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, डन। और जो शेल होती है, हर शेल, जैसे K शेल है, L शेल है, M है, N है, एवरी शेल हैज़ अ एनर्जी, एवरी शेल इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है, लिखो, ठीक है, डन। और जो शेल न्यूक्लियस के, जो शेल, ये भी एक पॉइंट लिख लो, शेल नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, उसमें एनर्जी सबसे कम होती है, एनर्जी इज मिनिमम, और जो शेल न्यूक्लियस से जितनी दूर होगी, फारदेस्ट होगी, उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर एनर्जी होगी इसके अंदर, इट विल हैव अ ग्रेटर एनर्जी। ये मॉडल किसने दिया, नील्स बोर ने दिया। तो आपके सामने आज आपने कितने मॉडल जाने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे 3 मॉडल जाने, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ आपका, ध्यान से आप सुनिएगा, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हमने किसकी बात की, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या बोला, एटम इज अ स्फीयर, एटम क्या है, स्फीयर है, ये क्या बनाया उसने, स्फीयर, एटम इज स्फीयर विथ पॉजिटिव चार्जेस एम्बेडेड इन इट एंड इन बिटवीन नेगेटिव चार्जेस आर देयर, ये कौन बोलता है, थॉमसन। थॉमसन के बाद आया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल ने अपना एटम मॉडल ऑफ एटम बनाया, उसमें क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग विच आर नेगेटिवली चार्ज, जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और मेजर पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है, एंड the positively charged protons and the negatively charged, there is a force between them which are keeping them this protons and neutrons combined together making atom stable। ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने। आज के टाइम में जिस मॉडल को हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं और जो लार्जली एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है, बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम किसने दिया, नील्स बोर ने। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, राइट। नाउ लुक व्हाट नील बोर said. He said, number 1, atom is made up of 3 fundamental particles, proton, electron and neutron. Second, proton is positively charged, electron is negatively charged and neutron is neutral. There is no charge on the neutron. Third, he said, proton and neutrons are presented in the nucleus.
Protons and neutrons are presented in the nucleus. Fourth, he said, electrons revolves around the nucleus. Electrons revolves around the nucleus. And electron revolves around the nucleus in a circular path. Each path he named them as energy levels, and he designated. For example, this is a nucleus, and one path, second path, third path. So the near one is K, L, then becomes M. In like this, in these parts, electrons are revolving. This is K, this is L, this is M, this is N, like this. Okay. And he gave them the called them circular path, and he gave them name. The innermost path to the nucleus is called K, then L, M, N. Okay. Then finally he said, there is a capacity of every shell of carrying electron. There is an electron carrying capacity in every shell. For example, the innermost shell, that is K, which is near to the nucleus, can carry only 2 electrons. L can carry 8 electrons. M can carry how much? 18 electrons. N can carry 32 electrons. So he defined the capacity of electrons of the shell also. And finally he said that every shell is associated with the energy levels. The shell which is closest to the nucleus, it is going to have the less energy. The shell which is farthest from the nucleus, it is going to have highest energy. So this is the theory given by the Niels Bohr, and this theory is largely and universally accepted, and we call this theory as a modern atomic theory. Right? Now, can we move further? Okay. Now, I'll rub this and we'll take you to another level. Right? Now I am introducing a word called electronic configuration. Write it down. What do you understand by electronic configuration? What is electronic configuration? अभी बताया आपको the arrangement of electrons in different shells is called electronic configuration. Shells कह सकते हो, I would say energy levels better. In different energy levels, in different energy levels is called electronic configuration. Of atom is called electronic configuration. याद रहेगा, अगर किसी ने पूछा what is electronic configuration, तो आप क्या बताएंगे? The arrangement of electrons in different energy levels of atom. जैसे ये K है, ये L है, ये M है, this is K, this is L, this is M, this is N. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, इसमें कितने, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब एक और कॉन्सेप्ट लिखो. राइट वन मोर कॉन्सेप्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखो. एक और चीज़ लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell, outermost shell of an atom, shell of an atom is called valence electron. लिखो, write it down.
यानी कि अगर मान लो ये आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर दिस इज द, लेट अस से दिस इज द पी आउटर मोस्ट, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल, द मोस्ट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन atom is called valence electrons। ठीक है, और एक बात और याद रखो, ये नोट में लिखो, इट इज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, it is only the valence electron which takes part in chemical reactions। ये भी लिख लो, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। डन, राइट, हो गया, समझ में आ रही है बात, ध्यान से लिखो। हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, जैसे के में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है एटम की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, इट इज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस, इट इज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, ये भी याद रखना, ठीक है। अब एक चीज और लिखो, एक नोट लिखो, I think now I need to rub this। ठीक है, डन। नोबल गैसेस लिखो, एक कॉन्सेप्ट लिखो, नोट लिख के, नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस क्या होती है, नंबर 1 हीलियम, हीलियम लिखो, हीलियम, आर्गन, नियॉन लिखो, लिखो हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, मेरे साथ याद कर लो, क्रिप्टॉन, जिनॉन लिखो, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, रेडॉन, ये नाम याद रहेंगे आपको, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। इसका मतलब क्या है, दे डू नॉट रिएक्ट विद, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी सब्सटेंस, विद एनी सब्सटेंस लिखो, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स, ये लिखो, ये दैट इज मच बेटर यार, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दे डू नॉट रिएक्ट, लिखो, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर substance, any other elements, with any other element, with any other element or compound, with any other element to form compound। लिखो,
नोबेल गैसेस कौन सी होती है? नोबल गैसेस हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इन गैसेस की क्वालिटी क्या है? दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। और इसका दूसरा नाम क्या है? इनको हम बोले दे आर आल्सो नोन एज और इनर्ट गैसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। लिखो, दे आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। दे आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। डन? बिकॉज ऐसा क्यों है? बिकॉज इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, इसका रीजन भी लिखो, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं? दे आर स्टेबल। जब ये स्टेबल है तो ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। राइट? बिकॉज इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। सिंपल एक नोट लिखो फटाफट, ठीक है? डन? और दैट इज द रीजन दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तीसरा पॉइंट लिखो, दैट इज द रीजन दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। लिखो, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नोबल गैसेस को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस भी बोलते हैं। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, निजॉन, रेडॉन। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, बिकॉज क्योंकि इनकी जो आउटरमोस्ट शेल्स हैं कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इनका यूज लिख लो। नियॉन गैस जो होती है ये वाली, ये नियॉन गैस आपने देखी होगी। दे आर यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट्स। दे आर यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट्स। आपने बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे हाईवेज पर, मार्केट्स में, जो वो यूज़ करते हैं, जो ग्लोइंग लाइट, वो नियॉन गैस होती है। तो इसके रीज़न क्या है? इट ग्लोज रेड। लिखो, इट ग्लोज रेड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। लिखो, when electricity is passed through it, it glows red। जब हम नियॉन गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ट्यूब में, तो ये कौन सा कलर ग्लो करता है? रेड कलर ग्लो करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियॉन। तो नियॉन का वहाँ पे यूज़ है। और जो आर्गॉन गैस है, आर्गन, ये वाली, इट इज़ फिल्ड इन बल्ब्स। इट इज़ फिल्ड इन बल्ब्स टू, बताओगे? एनी आइडिया? बल्ब सबके घर में होता है। टू प्रिवेंट जो आपका फिलामेंट, टू प्रिवेंट टंगस्टन फिलामेंट टू रिएक्ट। लिखो, आर्गॉन गैस इज फिल्ड इन लाइट बल्ब्स टू प्रिवेंट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम रिएक्टिंग। ठीक है, फ्रॉम रिएक्टिंग। Here what I said, argon gas is filled in electric bulbs to prevent tungsten filament to react। ठीक है, याद रहेगा ये। this is what we have heard, and here I am stopping my today's lecture, and in our next lecture we will continue our discussion। Thank you very much।